friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss about the important news from the Hindu edition of 11th November 2022. So let's start with the news. The first news is the Tamil Nadu blast accused planned suicide attack, says NIA. तो यहाँ पे है the National Investigation Agency on Thursday said Jamisha Mubin, the deceased who was suspect in the Coimbatore bomb blast case, that person had planned suicide attack to cause extensive damage to symbols and monuments of a particular religious faith. जैसा कि हम जानते हैं कि कोयम्बतूर में ब्लास्ट हुआ था on October 23rd, the day before Deepavali. So the blast took place near Kottai Ishwaram temple in Coimbatore. बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये केस जो है वो NIA, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको दे दिया था. So NIA, it has said that after the primary investigation that Mubin, after taking bayat or oath to serve the Islamic State, was planning to carry out suicide attacks to strike terror among a particular section of community. अब इस केस में है the 6 accused arrested in this case so far had allegedly conspired with Mubin to procure chemicals and other ingredients for fabrication of IED. What is the meaning of IED? Improvised explosive device. Which also include a vehicle-borne IED from online shopping platforms. Coming to the news that 8 Indian workers feared dead in Maldives inferno. So here we are talking about Malé, which is the capital of Maldives. So at least 10 people, most of whom are reportedly Indian, they have died in one of the worst fires witnessed in Malé. Then next है एक न्यूज़, एक वन लाइनर न्यूज़ कल भी ये न्यूज़पेपर में आया था. That a special court dealing with cases under the Prevention of Money Laundering Act. So Prevention of Money Laundering Act 2002. Fine. So Prevention of Money Laundering Act in Mumbai has made some extraordinary scathing observations about the way the Enforcement Directorate functions. So Enforcement Directorate, which is the implementing agency of Prevention of Money Laundering Act 2002. तो यहाँ पे संजय राउत जो शिवसेना के जो लीडर हैं, MP हैं, तो इनको बेल ग्रांट कर दिया है. एंड द कोर्ट हैज टर्म्ड हिज अरेस्ट नॉट ओनली इलीगल बट आल्सो वन रिकॉर्डेड फॉर नो रीजन एट ऑल. अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है दैट ED ऑफिसर सीम्स टू बी अवेयर ओनली ऑफ सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट एंड सेक्शन 45 स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर बेल बट नॉट द फैक्ट दैट दे शुड आल्सो होल्ड अ ट्रायल. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाइक इन्वेस्टिगेशन की बात है यहाँ पे कि लाइक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दे शुड follow the proper procedure. तो इसलिए यहाँ पे है कि that the judge has found that the underlying criminal case of cheating concerned another set of people who had committed misdeed but they were not arrested. And as far as Mr. Raut and his associate Praveen Raut, who has also been given bail, were concerned, it was essentially a civil dispute and there was nothing to show that money involved in the transactions were proceeds of crime. So this is the definition of money laundering. That transactions where proceeds of crime or money obtained from certain crime is being used. The next is Russia's withdrawal from Kherson. So we already know there are 4 regions which were annexed by Russia. Those were Kherson plus Luhansk, then Donetsk, then Zaporizhzhia. तो यहाँ पे नवंबर 9 को रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्गेई शोइगु, ही हैज अनाउंस्ड द विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम Kherson टू अ न्यू डिफेंसिव लाइन ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ Dnipro रिवर. सो यहाँ पे है कि द रशिया इट इज फेसिंग चैलेंजेस टू मोबिलाइज इट्स रिसोर्सेज काउंटरिंग यूक्रेन शेलिंग एंड पॉसिबल फ्लडिंग इन द एरिया. तो यहाँ पे है कि दैट रशिया विल ट्रांसफर, अभी रशिया का प्लान क्या है, रशिया विल ट्रांसफर द मिलिट्री फोर्सेज, वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड प्रायोरिटाइज द इवैक्यूएशन ऑफ द सर्विसमैन अक्रॉस द Dnipro river. Now let's see the importance of Kherson. So Kherson जो है, it is a strategically located place for Russia and Ukraine both. So if you will just look in the map, so Kherson. So these are the areas. तो यहाँ पे देखिए Kherson है, ये है क्रीमिया जो रशिया ने पहले ही अनेक्स किया है 2014 में. फाइन. उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक लिंक बन रहा था यहाँ पे क्रीमिया और Kherson के बीच में, जहाँ से अभी रशिया ने विड्रॉवल का अनाउंसमेंट किया है. सो इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड. दिस इज द Dnipro रिवर विच इज फ्लोइंग थ्रू Kherson. सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स है फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लोकेशन. तो अगर आप देखोगे Kherson, तो Kherson रशिया के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट था ताकि क्रीमिया उसके पास पहले से ही था,
खारसन अगर उसके अंदर होता तो इट वुड हैव बीन इजियर टू influence other area. Okay, now this is the Kherson, situated in the northwest of Dnipro river, so the province shares borders with Donetsk, Crimea and Black Sea, so it is very strategically located a place. इसके बाद आप देखेंगे कि खारसन से पहले रशिया ने जो अनाउंस किया था इट्स विड्रॉवल, दैट इज फ्रॉम खार्किव अर्लियर, तो खार्किव से भी पहले रशिया ने विड्रॉवल अनाउंस किया था। उसके बाद यूक्रेन ने ये भी अनाउंस किया था कि खार्किव जो है वो इनके कंट्रोल में आ चुका है। The next is Armistice Day, that is observed on November 11. Why November 11 is celebrated as Armistice Day? Because to mark the day when World War ended in 1918. So World War One it started from 1914 and it ended in 1918. उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था हुआ था विच इज कंसिडर्ड एज द प्रीडिसेसर ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज कॉल्ड एज लीग ऑफ नेशन। तो ये लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था, बट दिस लीग ऑफ नेशन वॉज डिसॉल्व्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब आप जो एक सुनते हैं नाम बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट वाज एस्टेब्लिश्ड अलोंग विद लीग ऑफ नेशन, दैट इज इन 1919। देन अगेन वन लाइनर न्यूज, SC allows activist Navlakha to be moved from jail to house arrest. Okay, so this is important. Supreme Court allows activist Navlakha to be moved from jail to house arrest. So Navlakha, who is already in Mumbai, Gautam Navlakha, he will be shifted from Taloja jail to his house arrest in Navi Mumbai under strict police surveillance. अब आप देखोगे that he was arrested in 2018 for alleged link with Maoist related to Bhima Koregaon riots, okay, and under the Unlawful Activities Prevention Act in 2018. Now the next important news, first is human rights defenders must obey law of the land, says India at HRC session. तो हम जैसा कि जानते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक सेशन चल रहा है जिनीवा में, जहाँ पे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू चल रहा है, जहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को तुषार मेहता, वो रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो इट इज़ द 4th यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ इंडिया एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ओके, अब उसमें से देखिए डिफरेंट कंट्रीज ने इंडिया के लिए देखिए क्या बोला है। So Greece, Netherlands and Vatican City, they have called upon the government of India to ensure freedom of religion and end discrimination against human rights defenders and religious minorities. Okay, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बाकी कंट्रीज ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिया है, जैसे कि द जर्मन रिप्रेजेंटेटिव दे कॉल्ड अपॉन इंडिया टू स्ट्रेंथन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सेड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित शुड एंड। Then Ireland has recommended that the Foreign Contribution Regulation Act be applied in a transparent manner and that Indian states should repeal anti-conversion law to ensure compliance to international human rights law. The next, the representative of South Korea has also raised the issue of FCRA, that is Foreign Contribution Regulation Act, and Italy has asked India to enable civil society organization, freedom of expression and freedom of religion. The next is at COP27, India insists on higher target by 2024. So COP27 happening at Sharm el Sheikh in Egypt. यहाँ पे it is also called as implementing COP because whatever have been discussed earlier at COP, now that is going to be discussed. अब यहाँ पे देखिए एक important point आ रहा है related to Green Climate Fund. Okay, related to Green Climate Fund. अब देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में, तो देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड का सबसे पहले मेंशन जहाँ पे हुआ था, मेंशन जो हुआ था दैट वाज 2009 में हुआ था एट कोपेनहेगन, जब कोपेनहेगन में चल रहा था COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, तो वहाँ पे कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड का मेंशन हुआ था, बट इट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि सबसे पहले इसका नाम मेंशन हुआ कि भाई ऐसा एक फंड होना चाहिए जहाँ पे बाई 2020 $100 billion has to be mobilized annually by developed countries to help developing countries for adaptation and mitigation. तो ये कोपेनहेगन में सबसे पहले ये मेंशन किया गया COP 15 में, फिर ये फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ एक साल बाद 2010 में जब COP 16 चल रहा था कैंकुन में। ओके, कैंकुन में, ठीक। अच्छा, अब ये ग्रीन क्लाइमेट फंड कहाँ पे है? नाउ करंटली दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड इज बेस्ड इन इंचियोन इन साउथ कोरिया।
ओके, अब यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो फोकस है वो यही है दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड मोबिलाइज $100 बिलियन अ ईयर फॉर हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू टैकल द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन देयर कंट्री। अच्छा, एक चीज ये भी है कि COP27 ने पहली बार जो क्लाइमेट फाइनेंस है विच हैज बीन फॉर्मली अडॉप्टेड। इसके पहले डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इस पे थोड़ा सा ब्लॉक करते थे इस चीज को, बट COP27 ने पहली बार इट हैज बीन फॉर्मली अडॉप्टेड। अब लेट्स सी India's stand. So India has said that climate actions to meet the nationally determined contribution targets, it requires financial, technological and capacity building support from developed countries. Okay. Then Intergovernmental Panel on Climate Change का एक वर्क है, IPCC कहते हैं. So India has said that rich countries are the major contributors to the carbon stock in the atmosphere, and this fact underlies the importance of core principle of UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. It is the outcome of Rio Earth Summit, okay, which was signed in 1992 and formally ratified in 1994, came into force in 1994, okay, and Paris Agreement. तो इसको कहते हैं climate justice principle. What is that climate justice principle? That is called as equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. The next is Prime Minister to leave for Bali G20 summit on Monday. तो यहाँ पे है कि that Prime Minister नरेंद्र मोदी will visit Bali for the G20 leadership summit from November 14 to November 16. Okay, so G20 जो है 2022 में जैसा कि हम जानते हैं that Indonesia is the chair of G20, और जो उसका जो एजेंडा होगा दैट विल बी फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, और इंडिया के बाद ये फिर ब्राज़ील के हाथ में जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज G20 ट्रॉयका। तो G20 ट्रॉयका क्या हो जाएगा फिर अगले साल के लिए? G20 ट्रॉयका का मतलब कि जब पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट, तो अगले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो पास्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया, प्रेजेंट हो जाएगा इंडिया, फिर ब्राज़ील। उसके बाद G20 शेरपा होते हैं, ठीक है, G20 शेरपा, हर कंट्री जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, दैट इज कॉल्ड एज G20 शेरपा। तो जो इंडिया के जो G20 शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तो ये जो अमिताभ कांत हैं ये पहले नीति आयोग के CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाउ ही G20 शेरपा। The next visa wait time to drop after July 2023 says US ahead of Yellen visit. तो यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। तो यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, शी विल मीट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अंडर द 9th इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप इन दिल्ली, and here they are going to discuss cooperation on financial, regulatory and technical issues and US support for India's upcoming G20 presidency. अब यहाँ पे जो एक चीज़ बात हो रही है वो तो रशियन ऑयल को लेके बात हो रही है। सो अगर आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में रशिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, दैट इज इंडिया इज प्रोक्योरिंग 22% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया। सो यह अब एक साथ में G7 का एक प्लान भी है टू पुट एन ऑयल प्राइस कैप ऑन रशियन और क्रूड ऑयल। तो ये G7 के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी है प्लान। तो G7 का प्लान क्या है? पुटिंग प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। प्राइस कैप कितना? कि रशियन ऑयल जो है वो बिकना चाहिए $40 to $60 पर बैरल। दिस इज द प्राइस कैप अनाउंस्ड बाय G7। अच्छा, EU ने क्या किया है? EU ने सीधा एम्बार्गो कर दिया है। एम्बार्गो मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट with effect from 5th December 2022. But India and China, they have stayed away from this. The next is visa issue. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज होते हैं। एक तो B1 B2 वीज़ा होता है, B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, B1 इज फॉर बिजनेस, B2 इज फॉर टूरिज्म। उसके बाद H वीज़ा होता है। H वीज़ा का मतलब होता है कि ये IT प्रोफेशनल्स या किसी स्पेशल टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई अगर US में जा रहा है काम करने के लिए, उसको वापस इंडिया आना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज H1B वीज़ा। L कैटेगरी वीज़ा, अगेन जो कंपनीज के बीच में जो मैनेजमेंट पोजीशन पे जो काम करते हैं उनको अगर यूएस में जाके कुछ दिन कंपनी में काम करना है, देन दे टेक L वीज़ा। ओके, H वीज़ा जो है वो मैनेजमेंट पीपल के लिए नहीं होता, वो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस में जो काम करते हैं लाइक IT प्रोफेशनल्स, उनके लिए होता है। द सेकेंड इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी विच वॉज लॉन्च्ड this year by US,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द ट्रेड डिस्कशंस ऑफ IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. The next is payment still an issue. India and Russia working towards a solution. तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आफ्टर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस रशिया जो है वो स्विफ्ट से बाहर आ गया. स्विफ्ट क्या है? दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड इन बेल्जियम. तो स्विफ्ट से बाहर आ गया. तो अब रशिया कैन नॉट यूज दिस सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो वॉट एवर इंडिया इज इम्पोर्टिंग, they have to find an alternative mechanism for paying to Russia. So one of the alternative mechanism is rupee ruble trade. Rupee ruble trade. One of the mechanism is rupee ruble trade. तो ये rupee ruble trade में क्या है? Rupee ruble trade. तो rupee ruble trade में ये है कि Indian exporters when they export to Russia they will get the money in rupee. Okay, they don't have to make a transaction in dollar. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि दैट इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट विद रशिया. तो उसमें क्या होता है कि रशिया के पास जो है वो रुपी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो उससे में क्या होता है कि अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया से वो कम है. तो ये एक्सेस रुपी को कहाँ पे यूज़ करें? तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम इन रूपी रूबल मैकेनिज्म. द नेक्स्ट इज वन लाइनर. रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वोंट गो टू अपकमिंग G20 समिट इन बाली. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. The next is Taliban ban women from parks and fun fairs in Kabul, that is Afghan city. The next is current account deficit. So this is also important. Current account deficit may be lower at 3% this fiscal. So what is current account deficit? So current account deficit it consists of two legs, visible and invisible. ओके, विजिबल एंड इनविजिबल. तो विजिबल और इनविजिबल में देखिए क्या क्या है. तो विजिबल में जैसे मर्चेंडाइज गुड्स दोज कम्स इन विजिबल. इनविजिबल में क्या आ जाएगा फिर? इनविजिबल में लाइक रेमिटेंसेस, ट्रेड इन सर्विस. जो सर्विस में जो ट्रेडिंग होती है वो इनविजिबल में आता है. ट्रांसफर्स like gifts, donations, etc. they all come in invisible. So SBI का एक report है which says that this year the current account deficit will be lower at 3%. Okay, this is because of rising software export. That will be counted in trade in services, remittances and $5 billion jump in forex reserve via swap deals. अब एक यहाँ पे एक वो ले लीजिए important information. एक कभी कभी वन लाइनर में आ जाता है. तो इंडिया US CEO फोरम has discussed the way to strengthen economic ties between the two countries, and it is chaired jointly by Commerce and Industry Minister of India Piyush Goyal and US Secretary of Commerce Gina Raimondo. तो इसको आप कंफ्यूज मत करना US ट्रेजरी सेक्रेटरी से. ठीक है ना. तो वो अलग हैं जो हमने अभी किया, और US Secretary of Commerce दैट इज डिफरेंट. अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है that bilateral trade between the country had risen to $120 billion in financial year 22 from $80.5 billion in financial year 2020-21. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.